அவர்களுக்கு அதை எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டு ராஜா அந்த மனைவி கையில் கிடைக்க உதவி செய்யலாம் சொல்லிக்கிறேன் ராஜா. அதை எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டு அவன் கையில் அந்த பணம் கிடைக்க உதவி செய்யப்பா. முற்றிலும் ஒவ்வொருவருடைய சமூகத்தை தாழ்ந்து आमीन। आइए हम सब लोग उठकर खड़े हो जाएंगे, एक छोटा सा कोरस गाएंगे। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। इस गीत के जरिए हम लोग परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। जीवन की ज्योति वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मान लूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मान लूंगा। दूध पिता का है अमर वचन तेरा, प्यार बजाता है मीठा वचन तेरा। दूध पिता का है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। अनंत जीवन है। अनंत जीवन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आइए हम लोग इब्रानियों का पुस्तक 10वां अध्याय में
37th वर्ड को पढ़ेंगे। வருகிறவர் இன்னும் கொஞ்ச காலத்தில் வருவார், தாமதம் பண்ணார்। ஆமென்। Amen। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, और देर ना करेगा। आमीन। ऐसे ही दूसरा पत्रस 3 अध्याय 3-4। पहले ये जान लो कि हाँ, अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, अंतिम दिनों में हंसी टट्टा करने वाले लोग आएंगे, जो अपने ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, जो अपने ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसकी आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? उसकी आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादा सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। सब कुछ वैसा ही है जैसे सृष्टि के आरंभ से था। बस बैठेंगे हम लोग, इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में भाई सबेसन है, वो प्रार्थना करेंगे। ಜೀವನ ದೇವರ ಸ್ತುತಿக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இந்த காலை வழியில் தேவனை கர்த்தாவே நீங்களே குருமனாக இந்த ஆராதனைகளை கொண்டு வந்து கர்த்தாவே இந்த உலகத்தில் உமக்காக கர்த்தாவே எங்களுக்கு ஜீவனை தந்திருக்கிறேன் கர்த்தாவே ஒரு நிமிஷ நேரத்துக்கு பிறகு கர்த்தாவே என்ன நடக்கும் என்பது கர்த்தாவே நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோமே ஆனால் சகலத்தையும் நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் கர்த்தாவே உலகத்துக்கு முன்பாக ஒரு சிந்தையை கர்த்தாவே எங்களை கொண்டு வந்து படிக்கப்பட்ட வார்த்தையானது உங்களுடைய தேவனை கர்த்தாவே நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை தருமாறு ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே கேட்கிற அந்த வார்த்தையானது தேவனை கர்த்தாவே எங்கள் உள்ளத்தில் பண்படாக கர்த்தாவே பெருகி அவை ஆசீர்வாதத்தையும் நாங்கள் நடக்க வேண்டிய வழிகளை கர்த்தாவே எங்களுக்கு போதித்து தேவனை கர்த்தாவே நீதி வஸ்திரத்தை எங்களுக்கு தருமாறு ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே தாசன் மூலமாக கர்த்தாவே பேசக்கூடிய வார்த்தை உங்களுடைய கர்த்தாவே பேசுகிறவர் நீரே பேசுகிறேன் என்று கர்த்தாவே நாங்கள் விசுவாசத்தை கேட்டு தேவனை கர்த்தாவே நாங்கள் இந்த ஆராதனை மகிழ்ச்சியாக காணப்பட கர்த்தாவே நீர் மகிழ்ச்சியின் கர்த்தாவே இந்த வஸ்திரத்தை எங்களுக்கு வந்து நீர் மகிமையான கர்த்தாவே உமது பரிசுத்தாவின் அரித்தாவின் வல்லமை கர்த்தாவே எங்களை மேல் ஊற்றி கர்த்தாவே எங்களை பிரகாசிக்க செய்யுமாறு ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே எங்களை தாழ்த்துகிறோம் எங்களுக்கு எதுவும் இல்லை தேவனே நாங்கள் கர்த்தாவே சத்தியத்தின் வசனங்கள் நாங்கள் அறிந்து கொண்டு கர்த்தாவே சத்தியத்தின் பாதைகள் நடக்க நீ கர்த்தாவே நீங்கள் சத்தியத்தின் வழிகளை எங்களுக்கு தருமாறு ஜெபிக்கிறேன் தேவனே விதிய நேரத்தில் உமது கர்த்தர் தெரியும் நீர் எங்களை பாதுகாத்து வழிநடத்துமாறு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் ஆமென் Amen. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह हम सबों से बहुतायत से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। अभी हमने 2 जगह से वचन को पढ़े। कितने जगह से पढ़े? 2 जगह से। उसमें हिब्रानियों के पुस्तक में कहता है आने वाला जरूर आएगा। வருகிறவர் இன்னும் கொஞ்சம் காலத்தில் வருவார், தாமதம் பண்ணார், लेट नहीं करेगा। हालेलुया। क्या बोलता है? आने वाला जो है बहुत जल्दी से जल्दी क्या करने वाला है? वो आने वाला है, वो देर ना करेगा। और सेकंड पत्रस में हम लोगों ने देखा, पहला तुम लोग ये बात को जान लो वो आने के पहले क्या होने वाला है। वो आने के पहले क्या होने वाला है? तो बोलता है आखिरी दिनों में हंसी टट्टा करने वाले लोग उठेंगे। परिहास कारण क्या करेंगे?
हंसी उड़ाने वाले लोग उठेंगे और अपनी मन की इच्छा से चलने वाले लोग, किसके हिसाब से? लोग बोलता भी ना, कोई भी कुछ भी बोलने दो, हम तो चलेंगे हमारे मन के हिसाब से। तो ये मन के हिसाब से चलना ये कभी का निशानी है, बोलता है ये अंत का दिनों का निशानी है। हंसी उड़ाने वाले लोग आएंगे, ये कब का निशानी है? अंत का दिनों का ये क्या है? निशानी है। देखो बोलने वाले लोग क्या क्या बोलेंगे करके 2 पतरस 3 अध्याय में वापस आइए। நீங்கள் அறிய வேண்டியது என்னவெனில் கடைசி நாட்களில் பரியாசக்காரர் வந்து आखिरी दिनों में हंसी उड़ाने वाले लोग आकर தங்கள் சுய இச்சையின்படி நடந்து अपने खुद के इच्छा के अनुसार चलकर அவர் வருவார் என்று சொல்லுகிற வாக்குத்தத்தம் எங்கே? वो आएगा करके बोला, वो प्रतिज्ञा किधर है? பிதாக்கள் நித்திரையடைந்த பின்பு சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட தோற்றம் முதல் இருந்த விதமாய் இருக்கிறதே என்று சொல்லுவார்கள்। सारा चीज जैसा दिखा वैसा ही है। कभी से पिता लोग जो सृष्टि हुए तभी से जो कुछ भी चीजें हैं वो सारा चीज कैसा है? वैसे के वैसा ही है। मसीह आने वाला है करके तुम लोगों ने जो बोला वो किधर है? इसके बारे में यदि आप मसीह का पहला आगमन में भी अगर आप जाकर देखेंगे, एक भविष्यवक्ता आकर खड़ा होकर प्रचार कर रहा है, यशायाह नबी क्या प्रचार कर रहा है? एक कुंवारी गर्भधारण होगी, वो एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम क्या रखना? इम्मानुएल रखना। अब मुझे बताइए, जो भीड़ के बीच में वो वचन को प्रचार किया, वो भीड़ यशायाह के बारे में क्या सोचा रहेगा? कुंवारी गर्भधारण हो सकती है? पॉसिबल नहीं है ना? कुंवारी गर्भधारण हो ही नहीं सकता। लेकिन यशायाह के पास जैसा प्रभु का वचन आया उसमें कुछ भी ना मिलाते हुए वो सरल वचन को उसने लोगों के बीच में क्या किया? रखा। बोला एक कुंवारी क्या होगी? गर्भधारण होगी। कितने साल बीत गया? कई 100 साल बीत गया। कभी कुछ मैसेज में नबी कहता है 712, कभी बोलता 714, लेकिन कई 100 साल क्या हो गया? पार हो गया। लेकिन वो वचन क्या नहीं हुआ? पूरा नहीं हुआ। लेकिन वो वचन पूरा होने के लिए एक व्यक्ति को परमेश्वर ने पहले से ही नियुक्त करके रखा। बाइबल बोलता है पुस्तकों में मेरे बारे में लिखा है, उसको पूरा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? आ रहा हूं। किसमें लिखा है? किताबों में लिखा है। कौन सा किताब में लिखा है? पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा है। किधर किधर लिखा है? जेनेसिस से लेकर मलाकी तक लिखा है। वो कैसे 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 आएगा। बोलो हालेलुया। जब एलिया लोगों के बीच में आकर मैं जब तक कहूंगा नहीं तब तक आकाश से ना तो बारिश आएगी ना तो ओस पड़ेगी, ये शब्द को बोलने के टाइम कितने लोग उसको देख के हंसा रहेगा? हंसा रहेगा या नहीं रहेगा? हंसी उड़ाने वाले आज ही नहीं है, नोआ के दिनों से है। जब नोआ जाकर लोगों के बीच में प्रचार किया, अब कुछ दिनों के बाद परमेश्वर पानी से क्या करने वाला है? नाश करने वाला है। जबकि वहां जो लोग थे उस जमाने के लोग कभी बारिश को देखा नहीं, क्योंकि उस समय में बारिश नहीं आता था। उस समय में क्या नहीं था? बारिश नहीं था। ओस गिर के अनाज उगती थी, पानी पोड़िंदा बेलचलना उंडानது। अब ओस गिर के सारा चीज मिल रहा है। अब ये बंदा आकर बोल रहा है कि सब पानी से प्रभु क्या करने वाला है? नाश करने वाला है। तो कोई भी व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करने के लिए क्या नहीं था? तैयार नहीं था। लेकिन कुछ लोगों को प्रभु ने उस जमाने में भी रखा उस वचन को स्वीकार करने के लिए। नोहा का परिवार को प्रभु ने क्या किया? रखा। तो आज के दिनों में भी जो वचन पूरा होने वाला है उस वचन को सभी लोग स्वीकार नहीं करेंगे। जो लोग मसीह लोग करके कहते हैं वो लोग भी क्या नहीं करते? स्वीकार नहीं करते।
ये बाइबल ऐसा चीज है, आप ये नहीं बोल सकता मैं इसको ले लूंगा, इसको छोड़ दूंगा, इसको लूंगा, इसको छोड़ दूंगा। नहीं, सारे वचन के अंदर जीवन है और हर एक वचन हमारे लिए, हर एक वचन आपके लिए। शास्त्र ले कहता है उसका वचन हाँ और आमीन करके है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां लोग बोलते हैं कि जैसा पहले जैसा था सब कुछ वैसा ही है। अब उसके बाद में 5 और 6, 7 को पढ़िए सिस्टर, वही अध्याय में। பூர்வகாலத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையினால் வானங்களும் ஜலத்தினின்று தோன்றி ஜலத்தினாலே நிலை கொண்டிருக்கிற பூமியும் உண்டாயினவென்பதையும் அப்பொழுது இருந்த உலகம் ஜல பிரளயத்தினாலே அழிந்ததென்பதையும் மனதார அறியாமல் இருக்கிறார்கள். இப்பொழுது இருக்கிற வானங்களும் பூமியும் அந்த வார்த்தையினாலே அக்கினிக்கு இரையாக வைக்கப்பட்டு, இப்பொழுது இருக்கிற வானங்களும் பூமியும், अब जो आकाशे हैं, अब जो ये धरती है, ये किसके लिए रखा गया है? आग के लिए रखा गया है। पढ़िए, मैं हिंदी में पढ़िए। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी, पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है, और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। इसी के कारण उस युग का जग जल में डूबकर क्या हो गया? नष्ट की गया। और वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी, वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए कि, वो वचन के द्वारा ही अभी इसको प्रभु क्या कर रहा है? संभाल रहा है। उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए कि जलाए जाए और ये भक्तिहीन मनुष्य के न्याय, और किसका न्याय? भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय। जो मसीह को स्वीकार नहीं किया, जो मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया, जो अविश्वासी लोग हैं, उनका क्या होने वाला है? न्याय होने वाला है। बोलो हालेलुया। देखो मत्ती में 24:35 में कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरी बातें कभी ना टलेगी। आकाश और पृथ्वी क्या हो जाएगी? टल जाएगी, लेकिन मेरी बातें कभी ना टलेगी। अब ये जो आकाश है और ये धरती आग के लिए क्या किया गया है? रखा गया है। हालेलुया। अब आपको एक बात गौर करना पड़ेगा। पानी का बपतिस्मा है ना, आत्मा का बपतिस्मा, उसके बाद में कौन सा बपतिस्मा? आग का बपतिस्मा। किसका बपतिस्मा? आग का बपतिस्मा। क्यों वो आग का बपतिस्मा को प्रभु ने रखा? इसके लिए ही रखा क्योंकि ये दुनिया किसके लिए रखा गया है? आग के लिए रखा गया है। जब तक लोत और उसका बेटियां, उसका पत्नी सोदोम गोमारे के अंदर था, तब तक अग्नि और गंधक क्या नहीं हुआ? उस सिटी के अंदर उतरा नहीं। क्यों नहीं उतरा? क्योंकि उनको बाहर आना था। उनको किधर आना था? बाहर आना था। तो आज भी परमेश्वर उसके बच्चे लोगों को किधर बुला रहा है? बाहर बुला रहा है। बोलो हालेलुया। जब तक वो लोग सोदोम गोमारे के अंदर था तब तक आग का गोला क्या नहीं कर पड़ा? वहां उतर नहीं पड़ा। इस वजह से क्योंकि लोग और उसका फैमिली वहां रहने तक परमेश्वर उस काम को क्या नहीं कर सके? कर नहीं सके। जब देर हो गया, சாஸ்திர லேக் कहता है துரிதமாய் அவனுடைய கையை பிடித்து என்ன செஞ்சாங்களா? வெளியே கொண்டு வந்தார்கள்। मतलब जल्दबाजी में, जल्द में चल चल चल, समय बहुत हो गया है। और अभी आप और मैं जो समय में बैठा है, अभी भी समय बहुत हो गया है। अब दिनों में हम लोग बैठे हैं, अंतिम समय के दिनों में। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इसका मतलब जैसा लोत और उसका परिवार जब तक बाहर आया नहीं,
सेम टाइप में यीशु मसीह का परिवार, जो यीशु मसीह का दुल्हन है, ये जब तक ये दुनिया को छोड़कर ऊपर जाएगा नहीं उठाए ले जाने में, तब तक ये दुनिया में क्या गिरने वाला नहीं है? आग गिरने वाला नहीं है। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर का क्रोध को कौन रोक कर रखा है? परमेश्वर का ही लहू क्या करके रखा है? रोक के रखा है। और थोड़ा समय, जैसे भाई ब्रैनम कहता है, आखिरी बेड़ अंदर आने तक, लास्ट बेड़ अंदर आने तक वो क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आप और मैं धन्य लोग हैं। परमेश्वर ने हमारे ऊपर क्या किया है? रहम किया। तो हर एक समय में प्रभु का कार्य जब दृश्य में आता है, लोग उसको क्या किया? उसके पहले हंसी उड़ाए। तो सेम टाइम में अभी भी क्या होगा? ऐसा ही होगा। लेकिन आप और मैं सतर्क और सावधानी से रहकर प्रभु का वचन को पकड़कर इस अंधकार भरी दुनिया में हम रोशनी के बच्चे बनकर क्या करना चाहिए? जीवन व्यतीत करना चाहिए। पौलुस इब्रानियों की किताब में 10वां अध्याय में साफ तरीके से बोलता है, आने वाला वो बहुत जल्द ही क्या करने वाला है? आएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, वो लोग कहेंगे देर हो गया, पहले से जैसा था वो सब कुछ वैसा ही है, उसके बारे में हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आने वाला बहुत जल्द क्या करने वाला है? आने वाला है। किसके लिए? उसका दुल्हन को लेकर जाने के लिए। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां पहला थिस्सलुनीयन का किताब के अंदर अब लोग 4 अध्याय में देखते हैं। पंद्रह को पढ़िए, 15 से। கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லுகிறதாவது, கர்த்தருடைய வருகை மட்டும் உயிரோடு இருக்கும் நாம் நித்திரை அடைந்தவர்களுக்கு முந்திக் கொள்வதில்லை. ஏனெனில் क्योंकि கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் தேவ எக்காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார். அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள். मसीह के अंदर जो सोए हैं वो लोग पहले क्या करेंगे? जी उठेंगे। कौन लोग? मसीह के अंदर जो लोग सोए हैं। हालेलुया। तो मसीह के बाहर जो सोए हैं वो लोग जी उठकर आने वालों में से नहीं है। उनका और ये जी उठने का कोई संबंध नहीं है। संबंध किसके साथ है? मसीह के लहू से, जिनका पाप धोए जाकर जो लोग निद्रा के अंदर है, वही लोग क्या करने वाले हैं? जी उठकर बाहर आने वाले हैं। हाँ, उसके बाद जो जिंदा हम लोग हैं, कौन कौन जिंदा है? हाँ, हम सब लोग जिंदा है ना। सिर्फ शारीरिक दिशा में जिंदा रह के फायदा नहीं है, आत्मिक दिशा में भी हम लोग जिंदा होना जरूरी है। हालेलुया। हमारा अंदरूनी मनुष्य हमेशा मसीह के लिए क्या होना चाहिए? जागरूक रहना चाहिए। बोलो हालेलुया। हाँ, जो जिंदा है हम लोग किधर उठाए ले जाएंगे? हम लोग बादलों पर, उसके साथ में हम लोग क्या किए जाएंगे? उठाए ले जाएंगे। बोलो हालेलुया। किधर उठाए ले जाएंगे? बादलों पर, उसके साथ में हम लोग क्या करने वाले हैं? उठाए ले जाने में जाने वाले लोग हैं। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज हमारा जिंदगी कैसा है हमको परख कर देखना। उठाए ले जाने में गया आनोक, उसका जिंदगी कैसा था? वो दिन प्रतिदिन किसके साथ में चलने वाला था?
परमेश्वर के साथ में चलने वाला था। बोलो हालेलुया। दिन प्रतिदिन वो परमेश्वर के साथ में क्या करने वाला था? चलने वाला था। और विश्वास में एकदम मजबूत था। उसका विश्वास को कोई भी क्या नहीं कर सकता, उसको विश्वास से डगमगा नहीं सकता था, क्योंकि जैसा वचन कहता है, नान विश्वासी किरवर इन्नार एंद्र आरिंद्रिकरेन। बोलो हालेलुया। मैं जो विश्वास करता हूं वो कौन है करके मैं क्या करता हूं? जानता हूं। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर के बच्चे लोग परमेश्वर को ऐसे ही आराधना नहीं करते, वो लोग जानकर समझकर क्या करते हैं? आराधना करते हैं। बोलो हालेलुया। तो ये ललकार, ये गड़गड़ा का आवाज, यक्काल सत्तम, इसको हिंदी में क्या कहता है? पढ़। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार, हाँ 16 से पढ़ना। क्योंकि प्रभु आपके स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार, और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। और प्रधान दूत का शब्द क्या करेगा? सुनने में आएगा। और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। परमेश्वर की तुरही क्या की जाएगी? फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं, और जो मसीह में मरे हैं, वे पहले जी उठेंगे। वो पहले क्या करेंगे? जी उठेंगे। बोलो हालेलुया। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? हमारा क्या हो जाएगा? रूपांतर हो जाएगा। मुझे बताओ, अगर जो कोई व्यक्ति मसीह चंगाई करता करके अगर विश्वास नहीं करता, वो कैसे पुनरुत्थान में आ सकता? ये शरीर के अंदर जो भी डैमेज है उसको परमेश्वर ठीक करके पहले जैसे बना देता है ना। अब ये 4 दिन से सड़ा हुआ शरीर को प्रभु ने कब्र के सामने खड़ा होकर बोला, ये लाजरस तुम क्या करो? बाहर आओ। वो सड़ गलेला बॉडी के साथ आया क्या बाहर? जैसा पहला था वैसे ही ठीक ठाक होकर क्या किया? वो बाहर आया। अगर कोई व्यक्ति चंगाई यीशु मसीह करता है, इस बात को विश्वास नहीं करता, तो उसको ना तो पुनरुत्थान में जगह है, ना तो रूपांतर में जगह है। हालेलुया। क्योंकि ये सारे चीजें, ये चंगाई, ये सब जो है, ये ट्रेलर है। बाद में आने वाला पिक्चर जो है ये रूपांतर और क्या है? जी उठना है। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये ललकार जो है, ये तुरही जब जब फूंका जाता है तो लोगों को क्या करता है? इकट्ठा करता है। और ये तीनों चीजों को करने वाला कौन है? मसीह स्वयं है। ये मैं नहीं है। भाई ब्रैनम बहुत सारे संदेश में बोलकर जाता है। ये तीनों काम को करने वाला कौन है? मसीह स्वयं है। आपको मालूम होगा, यहाँ पत्रस के किताब के अंदर ये भविष्यद्वक्ताओं के अंदर से बात करने वाला कौन है करके, पहला अध्याय, पहला पत्रस पहला अध्याय 11वां वचन को पढ़ो। தங்களிலுள்ள கிறிஸ்துவின் ஆவியானவர் கிறிஸ்துவுக்கு உண்டாகும் பாடுகளையும் அவைகளுக்கு பின்வரும் மகிமைகளையும் முன் அறிவித்த போது இன்ன காலத்தை குறித்தார் என்பதையும் அந்த காலத்தின் விசேஷம் இன்னதென்பதையும் ஆராய்ந்தார்கள்। उन्होंने इस बात की खोज की उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था, मसीह का आत्मा जो उनमें था, और पहले ही से मसीह के दुखों की ओर, पहले से ही मसीह के दुखी के और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता, उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही को क्या करता रहा? वो देता रहा। तो इसका मतलब भविष्यद्वक्ताओं के अंदर से काम करने वाला किसका आत्मा है? ये किसका आत्मा है? मसीह का आत्मा है। बोलो हालेलुया। तो ये सेम आत्मा है तो प्रेरितों के अंदर से भी काम किया। क्या अलग आत्मा था? प्रेरितों के अंदर कौन सा आत्मा की काम किया?
शास्त्र लेख में आप देखेंगे यहोवा का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, जलाने वाला आत्मा, ये सब तरह तरह से जो बातें कर रहा है, ये सब कितना आत्मा है? एक ही आत्मा है। बोलो हालेलुया। तो वो एक आत्मा किसका है? मसीह का है। वो मसीह का आत्मा शिष्य लोगों को बुलाकर उनके ऊपर फूंकर मारा, पवित्र आत्मा को क्या कर लो? पालो। हालेलुया। दाऊद नबी कहता है, मैं तेरा वचन को जब मनन कर रहा था, जब ध्यान कर रहा था, मेरे अंदर आग बड़ा कुटा बोलता। உம்முடைய வார்த்தையை, உம்முடைய கற்பனைகளை நான் தியானிக்கும் பொழுது எனக்குள் அனல் மூண்டது। मेरे अंदर क्या उत्पन्न हुआ? आग। तो आज हमारे अंदर क्या आना चाहिए? आग आना चाहिए। किसका आग आना चाहिए? परमेश्वर का आग आना चाहिए। जैसा एलिया नबी ने वो बलि को वेदी पर चढ़ाकर, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरा दास हूं, मेरी सुन करके जब उसने प्रार्थना किया, आकाश से अग्नि उतरकर उस बलि को क्या किया? भस्म किया। आज आप और मैं, प्रभु जी, मैं आपका जीवित बलि है, मुझ पर तेरे आग उतरने दे करके बात कर कर देखो, सेम फायर तुम्हारे अंदर आएगा और ये दुनिया की सारा आशा, लालच, इच्छा, ये दुनियावी सारी बातों को हमारे माइंड से क्या कर देगा? प्रभु दूर कर देगा। बोलो हालेलुया। क्यों? क्योंकि पौलुस लिखता है, मसीह यीशु में जो विचार था वही विचार तुम्हारे अंदर भी आए। तो वो विचार हमारे अंदर यदि आना है तो हमारा विचार के लिए हम क्या होना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहाँ चंगा करने वाला, चंगाई करके जो संदेश के अंदर बात करने के टाइम पे नबी बोलता है, जो हम लोग जीवित है, हम लोग मरे हुओं के लिए हम लोग रुकावट नहीं बनेंगे। जब परमेश्वर का ललकार वहां होगा, मसीह में जो सोए हुए लोग हैं वो लोग पहले उठेंगे। अभी मैं थोड़ी देर पहले जो बोला ना, वो सेम बात को इधर बोलता है। क्या बोलता है वो? நாம் குணமாக்கும் விசுவாசத்தை பெறாத போது நாம் எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ளும் விசுவாசத்தை பெற போகிறோம்? चंगाई पाने के लिए क्या चाहिए? हमको विश्वास चाहिए। अगर ये विश्वास ही अभी तक हमको नहीं मिला तो उठाए ले जाने का विश्वास को हम कैसे पाएंगे? इसका मतलब क्या है? हम अभी तक अपने आप को पूर्ण रीति से क्या नहीं किया? परमेश्वर के हाथों में हम लोग सरेंडर नहीं किया। हम लोग अभी तक परमेश्वर के हाथों में हम लोग अपने आप को क्या नहीं किया? सरेंडर नहीं किया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जब हम लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे तो पूर्ण रीति से सारी बातों को हमारे जीवन में प्रभु ठीक करने के लिए अभी भी वो सामर्थ्य है। आमीन, हालेलुया। ये दुनिया के अंदर चंद दिनों का हम लोग मेहमान हैं। ये दुनिया के अंदर कितने दिन का हम लोग मेहमान हैं? चंद दिनों का मेहमान है। आपको मालूम है, जब इजराइल के सेना जब जा रहा था, परमेश्वर के बच्चे लोग, उसके पीछे पीछे किसका सेना आया? फ़िरौन का सेना आया। लेकिन फ़िरौन का सेना को अगर ये लोग देखेंगे तो क्या हो जाएंगे? ये लोग डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। तो परमेश्वर कैसा उनको रक्षा कर रहा है देखिए। वो आग उतर कर आ रहा है। इजरायली लोग देख रहा है तो उनको काला बादल दिख रहा है, लेकिन मिस्री लोग देख रहा है तो उनका आग का खंभा दिख रहा है। बोलो हालेलुया। तो इजरायली लोगों का आंख के लिए क्या दिख रहा है? वो काला बादल। दुश्मन को क्या कर दिया? छुपा दिया। बोलता है ना, तुम्हारे दाएं बाएं 10,000 आएगा तो भी, गिरेगा तो भी, वो तुम्हें कुछ हानि ना पहुंचाएगा। और बाइबल बोलता है, तेरे विरोध में उठने वाले कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। कितना बड़ा बड़ा बात हमारे लिए प्रभु कर कर रखा है। इसको हमारे जीवन में हम लोग अनुभव कर कर लेने के लिए सिर्फ विश्वास की जरूरत है। यदि हम विश्वास करेंगे ना, हर एक वचन का आनंद हम लोग क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं।
कभी कभी हम लोग हमारे जीवन में जब परीक्षाएं आते हैं तो हम लोग थोड़ा डगमगा जाते हैं, लेकिन वो क्या चीज़ के लिए आता है करके याकूब हमको सिखाता है। देख क्या बोलता है, याकूब पहला अध्याय में 3 वचन को पढ़ना। உங்கள் விசுவாசத்தின் பரீட்சையானது பொறுமையை உண்டாக்கும் என்று அறிந்து அதை மிகுந்த சந்தோஷமாய் எண்ணுங்கள்। हिंदी में पढ़ना। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तुम्हारा विश्वास परखे जाने से क्या उत्पन्न होता है? धीरज। हेलो, एक व्यक्ति अगर वो मसीह जन है तो उसके जीवन में धीरज होना बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभी हमारा धीरज ख़त्म हो जाता ना, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता, लेकिन यहाँ बोलता है तुम्हारा विश्वास का परीक्षा। देखो अब्राहम का विश्वास का परीक्षा हुआ, धीरज के साथ में ही वो चला प्रभु के साथ ना। 25 साल प्रभु के साथ में चलना बोलने से कोई मामूली बात नहीं है। उसका विश्वास का परीक्षा में वो पास हुआ तो उसको वो सहन करने का वो धीरज को क्या किया, प्रभु ने उसको दिया। अय्यूब सारा चीज को प्रभु ने उसके अंदर से निकालने के लिए परमिशन किसको दिया? शैतान डायरेक्टली आपके ऊपर हाथ नहीं डाल सकता है, शैतान परमिशन लेकर आता है, थोड़ा टाइम दो मैं थोड़ा देखता है थोड़ा टाइम दो मैं थोड़ा। अगर वो पहले से ही नियुक्ति किया है वो कुछ भी कर ले, मैं हटने वाला नहीं है, मैं प्रभु के साथ में रहेगा करके प्रभु का हाथ को छोड़ेगा नहीं तो थोड़ा भी तकलीफ रहेगा वो पीछे क्या और क्या करेगा। जैसा अपन ड्रामा देखा था ना, रूत नहोमी औरपा का, बच्चे लोगों ने बहुत अच्छा किया था। औरपा ने किसिंग किया, चुम्मा दिया, बोला यही बात का मैं इंतज़ार कर रहा था, कभी ये शब्द आएगा, काग வந்து உட்காரவும் பணம் பணம் எப்போ கீழே விழுன்னு காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்களா। हाँ, जैसा इसका मुंह से शब्द आएगा वैसे ही क्या करेंगे, तैयारी में ही था। कुछ लोग आपसे झगड़ने के लिए सिर्फ मौका ढूंढते रह गए, कारण ढूंढते रह गए, कैसे ना कैसा भी झगड़ा होना ही चाहिए। लेकिन जो मसीह व्यक्ति है ना, वो आत्मा को जानता है, वो कौन सा आत्मा में उधर बैठा है, वो क्या करने वाला है, वो सारा चीज़ को वो क्या करता है। क्यों? पौलुस ने क्लियर कट लिखा है, आत्माओं को तुम क्या करो, परखो। अय्यूब का औरत उठी बोली क्या है, कभी भी देखो यहोवा यहोवा यहोवा, इतना तकलीफ हो गया, बच्चा मर गया, धन संपत्ति सब चला गया, जानवरें मर गए, फिर भी यहोवा यहोवा यहोवा, तू भी नहीं चाहिए और तेरा यहोवा भी। वो बोला पगली के जैसे क्यों बात कर रही है, हमने उससे बहुत सारा भलाई को लिया ना, लिया कि नहीं लिया? तो अब ये समय को भी हम क्या करेंगे, काटेंगे। धीरज किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। बोलो हालेलुया। तो सेम धीरज, क्योंकि धीरज के विषय में यदि लिखूं तो बाइबल के अंदर वही बोलता है अय्यूब के समान, है ना। तो आज हमारे अंदर वो धीरज क्या करना चाहिए, जिसके अंदर धीरज है वो पक्का प्रभु के रैप्चर के अंदर जाएगा, कुछ भी गड़बड़ में फंसेगा नहीं वो। कुछ लोग बोलते हैं ब्रैनम का मैसेज सही नहीं है, गलत है, 1977 में मसीह आने वाला है करके बोला था, किधर आया? ब्रैनम का मैसेज गलत नहीं है, उसका समझ गलत है। ब्रैनम ने कितने बार उसने प्रभु यूं कहता है करके जो भी बोला है वो सारा चीज पूरा हुआ है, उसमें से एक भी शब्द नीचे गिरने के लिए प्रभु दिया नहीं। हेलो, जो 1977 का जो बात था उसने अपना ओपिनियन को बताया, वो ये नहीं बोला कि परमेश्वर यूं कहता है, मेरे अनुमान के अनुसार ये 77 में प्रभु क्या कर सकता है, प्रभु का आगमन हो सकता है, होएगा करके नहीं बोला,
वो तो हर मैसेज में बोलता है आज भी आएगा प्रभु, कल भी आ सकता है, कई साल के बाद में भी क्या कर सकता है, वो आ सकता है। बोलो हालेलुया। जिसने गड़बड़ी के अंदर इधर क्या इधर क्या इधर क्या किया, वो सब साइड 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 होकर क्या कर दिए, चला गया। लेकिन धीरज के साथ में ये अंधकार भरी दुनिया में जो ज्वाला, जो वचन है, उसको पकड़कर, इस दिया को पकड़कर जो चलने वाला है, उसके अंदर प्रभु क्या करता है, धीरज को देता है। 2000 साल से इजरायली लोग इंतज़ार किया पहला आगमन के लिए। पहला आगमन के लिए कौन? हम अन्य जाति इंतज़ार किया गया। अन्य जाति का मसीह का कोई ये लेन देन ही नहीं है। 2000 साल से इजरायली इंतजार किया, मेसिया क्या करने वाला है, आने वाला है। उत्पत्ति में ऐसा लिखा है, निर्गमन में ऐसा लिखा है, गणना में ऐसा लिखा है ना। ये सारी बातें उन लोगों को मालूम है, वो लोग अपने गिरजा में प्रचार भी किए रहेंगे। लेकिन 2000 साल में जब वो आया उनके बीच में, जिन लोगों ने प्रचार किया वही लोग ने पहचाना नहीं। पहचाना क्या? है मेरे खुदा, है मेरे प्रभु, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। भजन संगीत 22 को प्रचार कर रहा है, वहां बाजू में मसीह को सलीब पर मार रहा है। एक तरफ से प्रचार चल रहा है और एक तरफ से उसको क्या किया, सलीब पर मारा, है ना। यशायाह नबी का वचन को प्रीच कर रहा है, वो हमारे सारे अधर्मों के कारण क्या किया जाएगा, मारा जाएगा, कुचलाया जाएगा। उसके कोड़े खाने से हम क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। एक साइड में प्रचार हो रहा है और दूसरे साइड में उसको सलीब पर क्या किया, मारा। कौन लोग मारा? 2000 साल से जिन लोगों ने इंतजार किया, वही लोगों ने क्या किया, मारा। बोलो हालेलुया। लेकिन अभी सेकंड कमिंग के लिए वो लोग इंतजार नहीं कर रहा है। सेकंड कमिंग के लिए हम दुल्हन, अन्य जाति के लोग क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। बड़ी सावधानी के साथ हम लोग प्रभु के साथ में क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। देखो क्लियर कट देख सकते हैं हम लोग इस अंतिम समय में हमको कैसा प्रभु सावधानी बरतने के लिए बोलता है। देखिए प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय के अंदर आइए। चार को बढ़िए। பின்பு வேறொரு சத்தம் வானத்திலிருந்து உண்டாக கேட்டேன். அது என் ஜனங்களே, நீங்கள் அவளுடைய பாவங்களுக்கு உடன்படாமலும் அவளுக்கு நேரிடும் வாதைகளில் அகப்படாமலும் இருக்கும்படிக்கு அவளை விட்டு வெளியே வாருங்கள். उसके अंदर से क्या करो, बाहर आ जाओ, வெளியே வாருங்கள்। हाँ पढ़ो बेटा। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना। स्वर्ग से एक और शब्द सुना। हे मेरे लोगों, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। उसमें से क्या करो, निकल आओ, कि तुम उसके पापों में भागी ना हो। उसके पापों का क्या नहीं हो जाओ, बागी ना हो जाओ। और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। और उसके विपत्ति में से तुझ पर कुछ भी आना पड़े। किससे बाहर आने के लिए बोल रहा है परमेश्वर? 17वां अध्याय 18वां अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे और एंड टाइम के मैसेज को उसके साथ में आप मिलाकर देखोगे, वो रोमन कैथोलिक और बाकी सारी संस्थाओं को क्या करता है, दर्शाता है। और उसके पापों के अंदर तुम क्या मत करो, मत पड़ो। उसमें से क्या करो, बाहर आओ। किधर से बाहर आओ, उसके अंदर से क्या करो, बाहर आओ। क्यों उसके अंदर से बाहर आओ करके प्रभु बात कर रहा है? उसको किसके लिए रखा है परमेश्वर ने? नीचे आइए 9। அவளுடனே வேசித்தனம் செய்து और 10 को भी पढ़ना। செல்வ செருக்காய் வாழ்ந்த பூமியின் ராஜாக்களும் அவள் வேகிறதினால் உண்டான புகையை காணும்போது, இதனுடைய அர்த்தம் என்னது? அவள் வேகிறதுனால் உண்டாகிய புகையை கண்டு, इसका मतलब आग से उसको क्या करने वाला है, आग से क्या करने वाला है, जलाने वाला है। அவருடைய சித்தத்துக்கு புறம்பாக அவருக்கு ஒரு சேவை செய்தல்। இந்த செய்தியை நீங்க படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, उसके मर्जी के खिलाफ उसका एक सेवा करना। इस संदेश को यदि आप पढ़कर देखेंगे, जुना करार का नियम के अनुसार
व्यभिचार करने वालों को वहां फतरवा करके मार डालना है ना। इसलिए यूहन्ना 8वां अध्याय में एक औरत को पकड़कर यीशु मसीह के सामने लेकर खड़ा किया ना, ये व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया, इसको क्या करें, हमारा मूसा ने ऐसा लिखा है, आप क्या बोलता है। तो उस समय का नियम था फतरवा करके क्या करना है, मारना है। लेकिन मैं जो मैसेज का नाम बताया उसमें नबी बात करने के टाइम पर बोलता है आकाश में बहुत बड़ा बड़ा फतरों को प्रभु ने क्या करके रखा है, तैयार करके रखा है। ये सारे वेश्याओं के ऊपर क्या करने वाला है, वो बड़ा बड़ा फतर है, गिरने वाला है, गिराने वाला है। तो हम धन्य है ना, हमको परमेश्वर ने वो सारी चीजों से क्या कर दिया, बाहर लेकर आ गया। बोलो हालेलुया। तो हमारा माइंड किसी भी हालात में क्या नहीं होना चाहिए, करप्ट नहीं होना चाहिए। सच्चा वचन, अंतिम समय का संदेश, ये दोनों को लेकर प्रॉपर वे में हम लोग चलने के समय में, उसके आगमन में जाने से हमको कोई भी इस दुनिया का ताकत क्या नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। बोलो हालेलुया। तो इसके लिए परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, कल क्या परसों एक वीडियो देखा मैं, एक पेंटेकोस्टल औरत बात कर रही है, बोलती है बहुत सारा सेवक लोग पैसे के लिए कॉल करता है, ये दो, अब मैं मिशनरी का काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो औरत डायरेक्टली बोलता है किसी को भी पैसा मत भेजो, किसको भी क्या मत करो। वो सेवक तुमसे क्यों पैसा मांग रहा है? अगर उसको प्रभु ने बुलाया है मिशनरी के रूप में, तो वो किससे मांगना चाहिए? तुमसे नहीं, किससे मांगना चाहिए? प्रभु से मांगना चाहिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज जितने भी बड़ा बड़ा प्रचारक लोग हैं, उनको हम लोग दान भेजने की कोई ज़रूरत नहीं। ज़रूरत है क्या? करोड़ों रुपया है। नोटबंदी के टाइम में बहुत बड़े बड़े लोग, इतना पैसा उनके पास था कि उसको सब ये करना पड़ा। अंतिम समय का संदेष्टा के संदेश में रहने वाले लोग भी करोड़ों करोड़ों रुपया दशवांश का क्या करना पड़ा उनको, बाकी दूसरे लोगों के साथ में ये करना पड़ा, मेल मिलाप करना पड़ा। मैं क्यों बता रहा हूँ? आपका ऑफरिंग, आपका टाइप जो है, आप जो चर्च में जाते हैं उसी चर्च में रखना है। हम बाहर किसी को भी भेजने की ज़रूरत नहीं। क्यों? उनके पास उद्धार का सुसमाचार है ही नहीं। है क्या? जब उद्धार का सुसमाचार ही है ही नहीं है, आपका और मेरा दान को उधर बेच के क्यों वेस्ट करना है? ज़रूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। बड़े बड़े प्रचारक लोगों के पास बहुत पैसा है, लेकिन हमारा जो एंड टाइम के जो झुंड है, जिनके पास सच्चाई है, जिनके पास उद्धार का सुसमाचार है, इनको क्या है? ज़रूरतें हैं जो लोगों के पास वचन को लेकर जा सके। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, हमको धीरज की बहुत ज़रूरत है। कोई बोलता वो आ गया, वो आया तो हम इधर रहने का ज़रूरत नहीं, वो आएगा तो हमको लेकर जाएगा। हमको लेकर जाने के लिए क्या किया है? वो आने वाला है। तो इसलिए आने वाला बहुत जल्दी क्या करेगा? आएगा। जैसा नोहा ने प्रचार किया, पानी आने वाला है, बारिश आने वाला है, बारिश आने वाला है। एक दिन बारिश आया या नहीं आया? आया। लूत ने बोला अग्नि आने वाला है, अग्नि आने वाला है, अग्नि आने वाला है, आया। हालेलुया। लेकिन मसीह आने वाला है, वो पक्का आएगा। किसके लिए आएगा? आपको और मेरे को लेकर जाने के लिए आएगा। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आशीष करे। हम सब लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। उस समय में हम लोग एक गीत गाएंगे। उस गीत गाने के समय में हम लोग अपने परमेश्वर के लिए दान देंगे। जीवन के राहों पर चलना संभल कर जरा, हर मुसीबत में यीशु सहारा तेरा।
जीवन के राहों पर चलना संभल के जरा, हर मुसीबत में यीशु सहारा तेरा। जीवन के राहों पर चलना संभल के जरा, हर मुसीबत में यीशु सहारा तेरा। जीवन के राहों पर पल दो पल का जीवन है, प्रेम का कितना मोल है। पल दो पल का जीवन है, प्रेम का कितना मोल है। समझ न पाए अगर यीशु को, यीशु से नाता न तोड़ दे। समझ न पाए अगर यीशु को, यीशु से नाता न तोड़ दे। बिगड़ भी जाए राहों पर, तुझे वही संभालेगा। जीवन के यीशु मसीह तक बढ़ते चल। ए संसार विलासा छोड़, यीशु मसीह तक बढ़ते चल। अगर तू मसीह के संग चले, फूलों की खुशबू साथ ले। अगर तू मसीह के संग चले, खुशबू साथ ले। बिगड़ भी जाए राहों पर, तुझे वही संभालेगा। जीवन के राहों पर चलना संभल के जरा, हर मुसीबत में यीशु सहारा तेरा। जीवन के राहों पर चलना संभल के जरा, हर मुसीबत में यीशु सहारा तेरा। यीशु सहारा तेरा, यीशु सहारा तेरा। हाँ मसीह में प्रिय भाई और बहनों, जीवन के राहों में, हर मुसीबत में केवल और केवल यीशु का ही हमारा सहारा है। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। सब लोग अपने हृदय में प्रभु से बोलिए, बातें कीजिए। आपका आवाज़ को वो सुनने वाला परमेश्वर है। जब अन्ना प्रभु के घर में आई, मन ही मन में वो प्रभु से बात की, उसका दुआ कबूल हुआ। उसके प्रति उत्तर में उसको सैमुएल मिला। आज आपका जीवन में कितना भी बड़ा परेशानियां क्यों ना हो, कितना भी बड़ा मुसीबतें क्यों ना हो, कितना भी बड़ा आंधी तूफान क्यों ना हो, वो सारी समस्याओं को हटाने वाला और हमारे आगे आगे चलने वाला वो खुदा आपके सामने खड़ा है। बच्चों आप प्रभु से बातें कीजिए, बहनों आप प्रभु से बातें कीजिए, भाइयों आप प्रभु से बातें कीजिए। ये प्रभु का घर है और प्रभु इस घर में विराजमान है। उसकी ओर पुकारने वाले प्रत्येक व्यक्ति का आवाज को सुनने वाला परमेश्वर। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं राजा। खुदावन खुदा
आपके बच्चों को अपने गवाही के रूप में खड़ा करके आज भी तू अपने बच्चों का आवाज को सुनकर उत्तर देने वाला खुदाई करके तूने सिद्ध कर कर दिखाया प्रभु जी। तेरी महिमा, तेरी तारीफ, तेरी धन्यवाद हो खुदावन मसीह। आने वाला बहुत जल्द ही आएगा करके हम लोगों ने शास्त्र लेख में देखा है। आपके आने के उस समय में इस मंडली में से एक भी व्यक्ति खोना नहीं चाहिए मेरे प्रभु। हर एक व्यक्ति आपके साथ में उस उठाए ले जाने में भाग लेना चाहिए। अपने बच्चों से तू बोल, तू बातें कर, तो हमेशा अपने बच्चों को सतर्क और सावध रख मेरे परमेश्वर। तेरी मर्जी हमारे के जीवन में पूरी होने दे। हमारे अंदर तू बढ़े और हम लोग घटे मेरे परमेश्वर। खुदावन खुदा, ये दान और दशवांश के लिए हम दुआ करते हैं मेरे प्रभु जी। आपके बच्चे जो आपसे लेकर आपके लिए देने के लिए तूने अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपका वचन को पालन करने के लिए आपने सहायता की, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से ये आपके लोग जो हम आपका वचन को जो पूरा करते हैं इस दान दशवांश के जरिए, तू भी अपने वादा को पूरा करना परमेश्वर। आकाश की जरकों को खोलने देना प्रभु जी। खोलकर परमेश्वर प्रत्येक घर परिवार में तेरी आशीषों की वर्षा होने दे। हर परिवार की जरूरतों को पूरी कर। जो लोग संगति से वंचित हैं, उन लोगों को आने से जो रोक कर रखा है, वो सारी शैतानी ताकतों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं परमेश्वर। आने वाले दिनों में वो लोग भी तेरे संगति में आकर तेरे नाम की महिमा करने दें। हम सबों को तेरे आधीन और स्वाधीन कर। तू संभाल, तू चला। आने वाले बुधवार के दिन होने वाले उस कॉटेज मीटिंग के लिए, मंगलवार के दिन होने वाले उस बहनों को मीटिंग के लिए खुदावन, और शुक्रवार के दिन में जो बहन लोग ऑनलाइन मिलकर जो प्रार्थना करेंगे, उन सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सबको आत्मिक जीवन में उन्मान कर तेरे नाम की महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम लोग प्रभु का प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। और कलीसिया कहे, आइए हम लोग आखिरी गीत गाएंगे। Hallelujah.
उनका अनुग्रह और उनके आशीष उनके आगमन तक हम सब लोगों के साथ में बने रहे। और कलीसिया कहे सब लोगों को जय मसीह की। हम लोग एक दूसरे से हाथ मिलाकर आगे बढ़ेंगे।